ठीक है, so let us start with the session. Good evening, everyone. Today we have a session on bone health effects of COVID for all age groups, which will be taken by Dr. Girish Rathod. Uh, Dr. Girish Rathod is MS Ortho and a core committee member and HOD for Orthopedic Department in Bhaktivedanta Hospital and Research Institute. He has completed his MS Ortho from Nair Hospital, Mumbai. He started his practice, that is private practice, in 1992 and was trained as spine, trauma and joint replacement surgeon. He established trauma unit initially at Chaitanya Clinic, instrumental in evolving the department with the entire complex high-grade trauma-related surgeries and spine unit. Over the years, he has been instrumental in establishing different departments of orthopedics like joint replacements, spine, pediatric orthopedics, orthoscopy, and trauma unit. At Bhaktivedanta Hospital and Research Institute, Department of Orthopedics and all orthopedic diseases are taken care under one roof. He also has overseen high quality of professional standards in clinical as well as operative faculty. He has established high level of sterility, latest state of art, instruments and quality control in operation theatre, which also includes highly trained, experienced OT staff. Under Dr. Rathod's leadership, Bhaktivedanta has 11 orthopedic surgeons looking after different aspects of orthopedic diseases. He is also a teacher and a guide to the upcoming orthopedic surgeons. At present, he is involved in mainly in joint replacement and trauma. Also, he is at present spearheading a new field of preventive orthopedic to help and assist society at large in preventing major orthopedic diseases like osteoarthritis, spine problem and bone diseases. Now I would like Dr. Girish Rathod to take over the session. Thank you so much. Uh, Doctor, your mic is mute. Can you hear me? Yeah, very much clear. Thank you, Shweta, for your introduction. I thank all the office bearers of Permanent Magnet for allowing me to have a small talk on bone health and COVID. COVID has this last 9 months to 1 year has given us a life with its full intensity. And it has made us realize what is important and what is not. By staying at home, we got a chance to contemplate that how in the life in the past we have been living, what present is giving, and how in future we can live. There is a saying in Marathi, Hindi, Gujarati that the greatest wealth is a health. Unfortunately, modern times, we run after wealth and lose our health, and then lose our wealth to gain the lost health. And that is the reason that all over the world, hospitals are increasing, the diseases are increasing, and there is no end. So my contemplation in last 9 months as an orthopedic surgeon, as an observer, not only as an observer, but also directly involved into the upliftment of the society's bone health. I thought I will share with all of you my experience and observations of last 9 to 10 months during Corona time. It all began with initially belief that it's not going to happen to us.
Then, when it happened overwhelmingly, not only overwhelmingly, but it happened for a real long duration of time. And probably still we are not even halfway out of it. So during this time, it is observed that activities of individuals at all strata of age were markedly, nearly totally curtailed. One common factor during this period was that not enough or hardly any exposure to sunlight. As I begin my talk, that Corona gave us an intense experience. So, as such, in modern life, our exposure to sunlight is not sufficient. Non Corona period also, we used to see a rampant number of the patients who have deficiency in vitamin D3 and calcium as well. For our bones to become stronger, vitamin D3 is a carrier which transports our calcium from our food to our bones. It is as simple as that. But because of our lifestyle is at home, to rickshaw or car, to train, again rickshaw, car, train to our office, again come in office, again we have a nice air conditioned office, again coming back, same cycle. So we hardly get any exposure of vitamin sunlight, and hence we do not have a sufficient vitamin D3 in our body. And hence, that is the reason that we do not have enough calcium in our bones. So during Corona, because of staying in house, we hardly got any sufficient calcium and vitamin D in our bones. And that led to lot many difficulties later on as the time progressed. Because the duration was so long, it was sufficient to create damage in our body. Children who used to play couldn't play, adults who used to go for work couldn't go, and elderly people, they hardly could go out. Maximum price, if somebody has paid amongst age strata because of Corona, has been in elderly people. Physically, emotionally, the maximum price has been paid by children and elderly who cannot, who do not rather complain much. So, due to vitamin D3 deficiency, there was not sufficient calcium, which may or may not be there in the body, could reach our bones. Most of the patients who come in our OPDs, they say, "Sir, I take milk regularly. Why can I have, how can I have weak bones?" So it's not only important to take calcium, we'll come to calcium after some time, but it's important, equally important, that whatever calcium you take has to reach through your bones. So this deficiency in vitamin D3 can lead to disease called as osteoporosis. It can happen because of the weak, no calcium, less calcium, and it can happen because of lack of exposure to vitamin D3. How can we correct this vitamin D3? I always tell my patients, when mothers complain to me about their children, sir, वो बहुत बाहर खेलने जाता है. I tell her, I tell that patient's mother that, madam, you are fortunate that your son is preferring to go out and play in a sunlight because he is developing
a large amount of reserves in his bones, which will be helpful in later years. There is an entire generation of children who are addicted to mobile, computers, and other games on mobile, that they hardly go out to play. And this is a very sad state. Not only during Corona, I have been practicing for last, or I joined orthopedics in 1989. And now almost I can say more than 30 years I'm into this practice. And I see that post fracture, after 1.5 months or 2 months, the new bone formation at the fracture site, what we used to see in our student years and in our government hospital years, it's a fact, very serious reality, that we hardly see a new bone formation in x-rays after 1.5, 2 months or 3 months or 4 months of fracture. That's a very serious strain. Non-unions, fracture not able to heal, in spite of all the treatment been given, are on very rampant rise. This is because of not sufficient vitamin D3. This is because of not sufficient calcium in our body. One surprising fact I will tell you is that those patients who are in their 80s and 90s, who are very weak, who are very, whose bones are apparently porotic, but when they have a fracture, they show abundant amount of new bone formation. And it always surprises me. The root, the cause lies that in their childhood, in their youth, they have exposed themselves sufficient sunlight through work, through farming, through different aspects in their life where they have walked sufficiently. Hence, this vitamin D deficiency during Corona time has been the major factor in creating a weak bones. And this will go a long way in society's bone health. How do we, what is the solution? How do we find a correction? It is said doctor should one practice and then preach. My humble request is that morning time, whenever it's possible, or rather make it a daily routine like your breakfast. Sunlight, when it comes to your home through your windows, if you're east-west facing, you're fortunate that you can detect directly sunlight from your windows. Expose, at least males can expose the upper part of the body, females can expose the back part. I always convey this so that let the largest sun surface area of the body should get direct sunlight at least for 20 minutes. Yeah, everybody has to go to office, that's a fact. But फाइन, आई विल, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता हूँ, क्षमा करता हूँ. सो हमारा शरीर का जो ज्यादा हिस्सा जो है उसे हमें सनलाइट को एक्सपोज करना जरूरी है. एक मेरा ऑब्जर्वेशन है इस बारे में सनलाइट का और विटामिन D3 का. हर साल हम जब पंढरपुर कैंप के लिए हम जाते हैं, एवरी ईयर हम पंढरपुर जाते हैं, हजारों वारी जो रहते हैं, वारी में आने हुए जो भक्तगण रहते हैं, एक एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन में रहा है कि ये सारे खेतों में काम करने वाले, ये गांव से आने वाले लाखों लोग आते हैं. और एक कॉमन चीज मैंने देखा है कि वो कम से कम 30, 40, 35, 20 किलोमीटर चल के आते हैं बिना कोई डिफिकल्टी के. और उनके अंदर इतने सारे दर्द, जॉइंट के दर्द उतने नहीं रहते. थके होते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है वो खेत में, धूप में, शरीर को कसरत, मेहनत के साथ में कसरत देकर बिताया है. इसीलिए उनके अंदर जो है जॉइंट्स के प्रॉब्लम उतने सारे नहीं दिखाई देते हैं. तो ये बहुत ही जरूरी है ड्यूरिंग कोरोना टाइम कि ये जो हमारा जो समय, जो विटामिन D3 के बिगड़ जो गया है,
सनलाइट के एक्सपोजर के बगैर, we must expose ourselves to sufficient sunlight, that so that we develop vitamin D3 in our body. Go out in the sun, धूप में जाइएगा। सवेरे का सन जो होता है, इट इज अ मोस्ट बेनिफिशियल, सबसे फायदा कारक जो सवेरे का सन होता है 9-10 बजे तक पहले का होता है। दोपहर का जो धूप होता है वो एनर्जी सेपिंग होता है, मॉर्निंग सन जो होता है वो एनर्जी गिविंग होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कृपया सनलाइट को लीजिए। कई बार सिंपल सादी चीजें हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि उसकी कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी होती है। अब आते हैं विटामिन डी के बाद में कैल्शियम के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली भारत में दूध का जो प्रमाण है, इतनी डिमांड है और उसकी सप्लाई कम होने की वजह से दूध जो पौष्टिक दूध जो होना चाहिए वो हमारे बच्चों को, हमारे जनरेशन को नहीं मिल पाया है। ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी अब जो है अवेयरनेस अब बढ़ रही है दूध के बारे में खास करके देशी गाय है, देशी गाय नहीं है तो भैंस है। लेकिन दूध जो है, मिल्क जो है, कम से कम 1 ग्लास, अगर मिल्क ना ले सके तो दही है, या तो छाछ है, या तो मक्खन है। ये घर पे जो बनी चीजें हैं वो लेने से हमारे शरीर में हम डेफिनेटली जो है कैल्शियम हमें लेना चाहिए उसके द्वारा। और ये सच्चाई है कि जब तक हम पर्टिकुलर एज हमारे हार्मोन्स रहते हैं तब तक इसका स्टोर हमारे बोन्स कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद में जब हार्मोन्स कम होते हैं, फिर हमें अगर अनसफिशिएंट हमारे पास स्टोरेज नहीं है तो फिर उस कैल्शियम के लिए हमें आर्टिफिशियल मेडिसिन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये डेली इनटेक ऑफ मिल्क जो है वो बहुत ही जरूरी है। कोरोना के समय में मिल्क ना होने की वजह से कई बार कई लोगों को जो है सफिशिएंट कैल्शियम नहीं मिला है। विटामिन D3, विटामिन कैल्शियम, और अब आते हैं बोन के मिनरल्स। हड्डियों में कैल्शियम के साथ में अलग अलग प्रकार के आयंस और मिनरल्स बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए क्या जरूरी है? एक तो सफिशिएंट पानी पीना। यस, ये सच्चाई है कि सफिशिएंट पानी न पीने की वजह से शरीर में आयंस की बहुत कमी हो रही है। क्यों? किडनी के डिजीजेस, रिनल फेलियर्स, इतने सारे डायलिसिस के सेंटर्स ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पानी पीना ही भूल गए हैं। काम में, हमारे डेली भागदौड़ में हम रत हो गए हैं। ये इसमें मैं भी आपके साथ में हूँ। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, सवेरे से शाम तक सर्जरीज, पेशेंट्स, इमरजेंसीज, राउंड्स, पानी पीना बैकसीट रह जाता है। और इसी के वजह से किडनी स्टोन्स, किडनी डिजीज वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बोन मिनरल डेंसिटी कम होने की वजह से बोन्स जो है उसको सफिशिएंट, जो कैल्शियम के सिवाय फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो सफिशिएंट मिल नहीं रहा है। इसीलिए बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो भी कम होती रही है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना बहुत ही जरूरी है। शायद जहां तक हो सके वहां तक कम से कम केमिकल्स वाला और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल वाटर आप ले सके जिसके अंदर सारे आयंस हो। आजकल कई कंपनियां इस प्रकार से पानी देती है कि जिसमें से सारे आयंस निकल जाते हैं, और ये पानी जब हम पीते हैं तो पानी में जाके ऑस्मोसिस की वजह से वो जो पानी जो है हमारे शरीर के बाकी के आयंस को खींच लेता है। तो ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए खास करके जो पानी जो हम पीते हैं उसमें हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग कोरोना के समय में जो रहा है वो है मोबिलिटी। एक्टिविटीज हमारी बहुत ही कम हो चुकी हैं। कम से कम ऑफिस में जाते स्टेशन तक तो हम चल के जाते थे, रिक्शा तक तो हम चलते जाते हैं, ऑफिस से घर तक या तो स्टेशन तक हमारा चलना होता था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी, हमारी मोबिलिटी बहुत कम हो गई। और मोबिलिटी कम, हमारा चलना कम होने के वजह से हमारे शरीर के स्नायु और हमारे शरीर की जो खास करके माइक्रो सर्कुलेशन, रेकॉर्ड करतोय जो आपण सूक्ष्म रक्तवाहिनियां होती हैं, अब आजकल रिसर्च जो हो रहा है मेडिकल फील्ड में, सो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो है माइक्रो सर्कुलेशन पे।
पल्स हम लेते हैं तो हम पल्सेशन देख सकते हैं, तो हाँ पल्स अच्छी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान माइक्रो सर्कुलेशन पर होना चाहिए। जब हम चलते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी सांस फूलती है काम करते समय, पसीना होता है, जब हम मसाज करते हैं, हाँ हमारे वैदिक समाज में, भारतीय समाज संस्था में एक ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है, हाँ तो हमारे वहाँ मसाज वाली बाई आके बच्चे को मसाज करती है, या तो दादी या नानी या माँ या मौसी, हाँ न्यूबॉर्न बेबी को मसाज करते हैं। ये जो मसाज करने का जो प्रिंसिपल जो है, हाँ वो है माइक्रो सर्कुलेशन बच्चे में बचपन से बढ़ाने का है। और ये ज़रूरी होता है कि जब हम दौड़ते हैं, जब हम ब्रिस्क स्पीड से चलते हैं, हाँ, और जब हम एक्सरसाइज या योगा जब करते हैं, तब हमारे शरीर में जो है ग्रॉस सर्कुलेशन तो ठीक जाता ही, लेकिन माइक्रो सर्कुलेशन जो होता है, जो हमारे शरीर की अलग अलग मांसपेशियां, शरीर के महत्व के ऑर्गन्स को तो ग्रॉस ब्लड जाता ही है, लेकिन मांसपेशियां, उसके साथ में हमारे सांधे, जॉइंट्स जो होते हैं, और हमारे कमर के अंदर रही जो डिस्क जो होते हैं, यह एरिया में माइक्रो सर्कुलेशन बहुत महत्व का हिस्सा करता है। क्योंकि घर में रहकर, कंप्यूटर के सामने रहकर या बेड पे रहकर या चेयर पे कंटिन्यूस बेड पर रहकर हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इसीलिए कोरोना के समय में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रमाण में नी जॉइंट, बैक एक, गर्दन के पेन, एल्बो पेन के पेशेंट आने लगे। पहले भी आते ही थे, लेकिन कोरोना के समय में क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया एक्टिविटी के ऊपर, लैक ऑफ एक्टिविटीज की वजह से, हाँ हमारे शरीर का छोटी छोटी खून की जो सूक्ष्म, जो खून की वाहिनियां है, वह सूक्ष्म वाहिनियां खून की नलियों में खून का प्रवाह नहीं पहुंच सका, जो तभी पहुंचता है जब उसमें हम एक्सरसाइज जब करते हैं, तब जो आखिर का जो सबसे जो नैरो खून की नली है, वहां पर खून का प्रवाह जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब। और उसी के वजह से कमर के अंदर दो हड्डी के बीच में रही जो गद्दी होते हैं, उसको हम डिस्क बोलते हैं, डिस्क का हार्ड हो जाना। और क्योंकि उसमें सर्कुलेशन नहीं पहुंचा है, इसके लिए ब्लड सप्लाई नहीं गया है, इसके लिए पानी खत्म हो जाता है, इसके लिए वो स्टिफ हो जाता है, और सडन सवेरे उठे हम थोड़ा सा दातुन करने गए या ब्रश करने गए, कुछ जरा सा बाल्दी उठाया, कुछ जरा सा यहाँ से टर्न हो गए, डिस्क प्रोलैप्स या तो बैकएक जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। उसी की वजह से गर्दन में भी कंटिन्यूस एक जगह पर कंप्यूटर के सामने बैठकर, हाँ काम करना, वर्क फ्रॉम होम, हाँ वर्क फ्रॉम होम, इसने एक अलग प्रकार के बीमारियों का नया जो है उभार समाज के सामने रख लिया है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि कंटिन्यूस आप जब चेयर के सामने जब बैठे हैं, कई लोग अब ऑफिस जा भी रहे होंगे, कई लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम का नया कल्चर अब सोसाइटी में एस्टाब्लिश हो चुका है, और ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि उसके फायदे भी अनेक हैं, लेकिन उसके गैर फायदे खास करके पर्सनल लेवल पर, हाँ फिजिकल, इमोशनल एंड फैमिली लेवल पर जो गैर फायदे हैं वर्क फ्रॉम होम के, उसके गैर फायदे से हमें सतर्क और सजाग रहना चाहिए। जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, एक चीज ख्याल रखिएगा कि बैठना जो होता है कंफर्टेबल रखिएगा। हाँ, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है आपके लेवल पर आंखों के सामने रखिएगा। आपकी चेयर ऊंची रहना चाहिए, कंप्यूटर का स्क्रीन भी सामने ऊंचा रहना चाहिए, ताकि आप स्लाउच्ड पोजीशन में, या आप जो झुक कर जो बैठते हैं, उससे जो है कमर में बहुत ही तनाव आ जाता है। हर 2 घंटे के बाद वर्क फ्रॉम होम वर्क लोगों को एक विनती है, ऑफिस में जाकर भी 2 घंटे के पार बाद एक 10 मिनट का या तो 5 मिनट का एक छोटा सा वॉक, छोटा सा गर्दन का एक्सरसाइज, छोटा सा शोल्डर को मूवमेंट, हाँ ये करना, ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, नहीं तो शरीर में स्टिफनेस आना कॉमन है। हम पहले क्रिकेट देखते थे, जब मैं छोटा था तभी इंग्लैंड की टीम आती थी इंडिया में, तब एलन नॉट करके उनके विकेट कीपर रहा करते थे। और मुझे हमेशा अमेजिंग, मुझे आश्चर्य होता था कि किस प्रकार से एलन नॉट अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज बॉलर्स के, दो बॉलर के चेंज होने के पहले वो किया करता था। लेकिन आज मैं समझ सकता हूँ कि वह दो बॉलिंग के, दो बॉलर्स के बीच में वो जो छोटी जो एक्सरसाइज हिप नी शोल्डर की वो करता था, ताकि उससे स्टिफनेस ना आ जाए, ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। समाज में हम आजकल ज्यादा ध्यान देते हैं बल्क को, स्नायुओं को, बॉडी बिल्डिंग को, लेकिन
सीक्रेट, शरीर स्वास्थ्य का जो रहस्य है वह है फ्लेक्सिबिलिटी। जितना शरीर फ्लेक्सिबल, जितना शरीर को हम अच्छी तरह से हिला चिला सकते हैं, वह सीक्रेट है। जितने हम मसल्स हम बनाते हैं, बढ़ाते हैं, वो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन स्ट्रेचिंग, शरीर को रेगुलरली स्ट्रेचिंग मिलना, ये सबसे ज्यादा महत्व का है। और इसी के लिए कोरोना के समय में घर में रहकर, हाँ, कंटिन्यूस ये एक जगह पर बैठ के काम करने की वजह से लोगों में सडनली, मैं देखता हूँ कई मेरे नेबर्स हैं, मेरे जान का पहचान वाले लोग हैं, एंड कॉमन फीचर एक हो गया कि वजन जो है वो अनेक गुना लोगों का बढ़ गया है। एक बात। दूसरी बात, कंटिन्यूस 90 डिग्री चेयर के सामने बैठ के घुटना 90 डिग्री में रख रख कर घुटना जाम हो जाता है। पटेला जो नी कैप है अंदर के हड्डियों के साथ जाम होकर उसमें पेन, घुटनों के दर्द बढ़ गए। एबनॉर्मल पोजीशन में बैठ बैठकर कमर और गर्दन के दर्द बढ़ गए। टेबल के ऊपर ऐसा एल्बो रख रख कर टेनिस एल्बो और यहाँ के जो सूजन जो है एल्बो की, वो बढ़ गई है। कंप्यूटर में रख रख कर उंगलियों का स्टिफ हो जाना, उंगलियों के मसल्स में इन्फ्लेमेशन होना, ये कॉमन हो गया है। ऑफ कोर्स आंखों की बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां, स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेन, पर्सनल स्ट्रेन, ये पूरा एक अलग हिस्सा है, बट ये इंडिविजुअल का ही भाग है। ये एक सारा कॉम्प्लेक्स, हाँ, ये कंप्यूटर के सामने बैठकर कंटिन्यूस घर में वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से ये प्रकार की तकलीफें शरीर में लोगों को बढ़ गई हैं। तो इसी के लिए, हाँ, थोड़ा सा 2 घंटे के बीच में बेसिक नेक एक्सरसाइज, छोटा सा गर्दन को ऊपर नीचे साइड से लाना, थोड़ा सा शोल्डर को हिलाना, थोड़ा सा हाथ को इससे ऊपर करना, और एक छोटा सा चल के आ जाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप कभी मेरे ओपीडी में आओ तो आपको मैं दिखाऊंगा मेरे जो टेबल, मेरे चेयर जो मैंने ऊंची रखी है, हाँ, ताकि मेरे पैर जो है वो, हाँ, मेरे टेबल के नीचे सीधे चले जाए, ताकि मैं घुटने को 90 डिग्री बेंड करके मैं बैठा ना रहूं। जापान में एक रिसर्च किया गया था, और उस रिसर्च में उन्होंने इस प्रकार से देखा कि टेबल को उन्होंने 4 फुट, उन्होंने, सॉरी, टेबल से उन्होंने जमीन से थोड़ा उसको ऊंचा कर लिया, और उसी प्रकार से चेयर को भी ऊंचा कर दिया, उतना सफिशिएंट ऊंचा कर दिया ताकि जो पैर जो है वो हवा में रहे। और ये रिसर्च के बाद में देखा गया कि जिन रिसर्च के जो हिस्सेदार थे, जो लोग ऊंची चेयर पर बैठे थे, उनके पैर हवा में हिल रहे थे, उनके अंदर घुटनों का पेन और घुटनों के आर्थराइटिस का जो है वो चांसेस कम हो गया, क्योंकि कांस्टेंट मोबिलिटी रहती थी। ऑफिस में हम 8 घंटा 9 घंटा कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में घुटने को 90 डिग्री पे रखकर, या तो कंटिन्यूस ड्राइव करने के लिए भी थोड़ा चेयर को ऊपर रखना, चेयर को थोड़ा पीछे रखना, ताकि आपका पैर जो है बूट स्पेस में चला जाए, हाँ, ताकि आपका घुटना जो है वो मोबिलिटी रखना, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये एक तीसरा हिस्सा रहा है कोरोना के वजह से, कि शरीर के अंदर मोबिलिटी कम होने की वजह से माइक्रो सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम हो गया है। अब आते हैं हम, हाँ, घर के रहने की वजह से कोरोना में और कौन सी प्रकार की बीमारी आई। घर में हमारे जो वृद्ध जन है, खास करके हमारे माता पिता, और घर में जो समाज में जो वृद्ध जन है, उनका, ऑल्दो कोरोना के वजह से रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए रिमार्केबली। वन ऑफ द biggest gift as an orthopedic surgeon corona has given is that रोड एक्सीडेंट्स जो आते थे हमारे अस्पताल में, और सारे हर जगह पर एक्सीडेंट्स का जो रेट है वो रिमार्केबली 90% कम हो चुका था जब कंप्लीट लॉकडाउन था। दैट वाज ए मोस्ट हेल्दी थिंग आई फेल्ट, कि डेथ रेट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट एंड डेथ रेट एंड दिस एडमिशन की वजह से फ्रैक्चर्स और सर्जरीज जो करनी पड़ती थी वो बहुत ही कम हो गया। तो इसीलिए मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जीवन के इस भाग दौड़ में, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं जब भी ड्राइव करता हूँ एक ऑर्थोपेडिक व्यू हो जाता है मेरा, जहां पर भी जाता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन के दृष्टिकोण से देखने की एक अभी जीने का एक तरीका हो गया है। और जब मैं देखता हूँ टू व्हीलर्स वाले जिस प्रकार से ड्राइव करते हैं, जिस प्रकार से रिक्शा, हाँ, 4 व्हीलर्स, कहीं पर भी सिग्नल, किसी से भी पीछे, किसी को आगे जाने देने की जो हमारी ये जो रेस, नहीं जाने देने की जो रेस है,
इसकी कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 35 years. Car should be हेलो। driven not more than 80 per mile. हाँ बोल। And bike should not be driven more than, कार को 80 ओके। से ज्यादा मत चलाइएगा और बाइक को 40 से नाही, ज्यादा मत मी चलाइएगा। त्यांना मैं सांगितलं घरी कार और जा, बाइक मी दोनों तुम्हाला चला फोन रहा हूँ। करेन आणि फोनवर हाँ, बोलूया आपण। अब तो ऑफ कोर्स उम्र हो गई तो अभी हम्म। उतना नहीं होता है, लेकिन जब आप 80 की स्पीड से जब आप नाही गाड़ी नाही नाही चलाओगे, कुछ नाही सडनली नाही नाही, अगर तुम्ही होता अटेंड है नाही करत सेशन? तो आप आपको बचाने की हाँ परिस्थिति में ठीक आहे है। चालेल, ओके। ये सच्चाई है। ओके बाय। मैं जितनी बार मैं 80 से ऊपर गया हूं, मेरे से मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाइक मैंने पर्सनली मेरे यूथ में ऑर्थोपेडिक्स लेने के बाद जब भी चलाई है, 40 के बाद जितनी बार ऊपर में गया हूं, एक्सीडेंट होते होते मेरे बच गए हैं। क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट पूरा घर, पूरा जीवन को अपसाइड डाउन कर देता है। ये जब हम चलाते हैं तब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तब किस प्रकार के सारे घर की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, हाँ, स्थिति कैसे बुरी हो जाती है। ये जब मैं कैजुअलिटी में जब जाता हूँ, हाँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ और जब टू व्हीलर्स वाले आते हैं एक्सीडेंट होके, सारे हीरो लोग जब आते हैं वहां पर जीरो होके आते हैं। हाँ, तो हमेशा हमें वाहन चलाते समय ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि सबसे पहला महत्व है मेरा स्वास्थ्य। सबसे पहला महत्व है कि मेरे पीछे, मेरे कार में, बाइक में मेरे जो पीछे बैठा है उसका जीवन मेरे लिए उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और मेरी जिम्मेदारी मेरे घर वालों की मेरे सर पे जिम्मेदारी है। मुझे कुछ हो जाएगा तो ये भावना के साथ हमें जो है हमारे जो व्हीकल्स जो है वो चलाना जरूरी है। मैंने देखा कोरोना के बाद में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, सडनली लोगों की स्पीड जो है बढ़ गई थी, क्योंकि इतने महीनों से घर में थे, तो डर निकल गया था, रास्ता खुला था, और सडनली जो स्पाइक जो आया एक्सीडेंट्स में, हाँ, वो उसी के वजह से आया था। तो ये एक बहुत महत्व का है हिस्सा है कि कैसे हम जो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स हम चलाते हैं, हाँ, उसे हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। कोरोना के समय में शरीर का जो वजन जो बढ़ गया, यह वजन के बढ़ने के वजह से ऑलरेडी कैल्शियम की कमी, ऑलरेडी विटामिन D3 की कमी, ऑलरेडी एक्टिविटी कम होने की वजह से जो लोड जो है, हाँ, नीचे की कमर, घुटनों के ऊपर, ये लोड बहुत ही बढ़ गया। और उसी के वजह से, हाँ, घुटनों का पेन, कमर का पेन जो है लोड बढ़ने के, पेट बढ़ जाता है तो सारा कमर के स्नायु जो है वो उस पर लोड आता है। और वही वजन होने की वजह से जो घुटने पे लोड, किसी को अगर 10 किलो 15 किलो हम कंधे पर खटा रख कर चलने के लिए कहें, आप कितना देर तक चल सकेंगे? आपका घुटना दर्द होगा ही। उसी वजह से नॉर्मल वजन से ज्यादा जब वजन होता है तो वो हमारे शरीर के हर हिस्से पर, हाँ, वो जो है लोड लाता है। कोरोना में एल्डरली लोगों के फ्रैक्चर्स वो बढ़ गए। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि भले एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए, लेकिन इन हाउस एक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा बढ़ गए। एक हमने रिसर्च किया है इन हाउस एक्सीडेंट्स के ऊपर, घर में कैसे कैसे तरीके से मार लगता है। ये कई सालों का हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। उसमें देखा गया है कि घर में कम से कम अलग अलग तरीके, तो कम से कम 40 अलग अलग प्रकार से घर में एक्सीडेंट हो सकते हैं। लिफ्ट में दरवाजा अटक में हाथ अटक जाना, हाँ, घर में दरवाजा खोलते, दरवाजे के सामने छोटे बच्चे हाथ रख के खड़े हैं, हवा से जोर से दरवाजा लग जाता है और तुरंत जो बच्चों की जो उंगलियां जो कट जाती हैं, वो देखना। एल्डरली लोग जो होते हैं, हाँ, वो बाथरूम जाने के लिए सडनली उठते हैं, हाँ, और उनको चक्कर आ जाता है, और अर्ली मॉर्निंग वे बाथरूम में या तो बाथरूम जाते जाते वो गिर जाते हैं। बाथरूम में साबु या सफेद साबुन का पानी या तो वापरा हुआ साबुन जो छोटा सा टुकड़ा है वो जमीन पे गिर जाता है, वापरते वापरते हाथ से छटक के, और उसके पर पैर गिर जाने से, गिर के फ्रैक्चर्स होना बहुत ही कॉमन देखा जाता है। हाउसवाइफ्स घर के ऊपर स्टूल के ऊपर चढ़कर पंखा, समय दिवाली के समय आता है और हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स कितने आते हैं। कोरोना समय में भी घर में रहकर स्टूल पर रहकर जो है वो पंखा साफ करते करते चक्कर आ जाना, पैर स्लिप होना और नीचे गिर जाना। ये कॉमन एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो घर का इन हाउस एक्सीडेंट है वो बढ़ गए हैं। मिक्सचर में बाय मिस्टेक जो मेन स्विच है वो चालू रह जाता है, और मिक्सचर घुमाते घुमाते तो स्विच चालू हो जाता है
उंगलियां कट जाना, गाजर को छींटते समय जो छीनी जी होती है, वो बातचीत करते करते छींटते और छींटते छींटते अचानक वो जो उंगली का जो यहाँ का जो सरफेस है, वो छीनी के साथ गाजर के साथ उंगली का मसल्स और टेंडन का भी कट जाना। ये इस प्रकार के जो एक्सीडेंट्स जो है वो इन हाउस एक्सीडेंट्स कोरोना के समय हमारे बीच जो है वो हमने ज्यादा देखे। ये मेरा कहने का, शेयर करने का आप लोगों से यही एक उद्देश्य है कि थोड़ा सा अगर हम केयरफुल रहें तो हमारा जो हेल्थ, हमारी प्रोडक्टिविटी, फैमिली के लिए, हमारे लिए और समाज के लिए जो है वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक और चीज़ दिखाई गई है कोरोना के समय, विच वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, विच आई हैड नॉट सीन ड्यूरिंग मेरे कैरियर में। मैंने इतने सारे पेशेंट्स आते हुए नहीं देखे थे। वो है फ्रोजन शोल्डर। जब हम फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर में कुछ रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है, कड़क हो जाती है। उसी प्रकार से कोरोना में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, खास करके मिडिल एज 35-40 के ऊपर और एल्डरली लोगों में सांधा का अक्कड़पना जो बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि लोगों ने काम करते समय एक्टिविटी तो कम कर दी, इतना कम कि शोल्डर को जो ऊपर नीचे करना भी हमने छोड़ दिया। तो उसी की वजह से शोल्डर का जाम हो जाना, एक बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट्स जो है वो हमारे सामने आने लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एक आपके एक फ्रेंड होने के नाते, एक डॉक्टर से ज़्यादा एक फ्रेंड होने के नाते, कृपया एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जो सात्विक हो, जो आप जीवन भर कर सकें। पेशेंट्स आते हैं, साहब मैंने जिम में नाम डाल दिया है, जाते हैं, 1-2 दिन जाएंगे, 15 दिन जाएंगे और फिर साल भर का जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। ऐसी एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, खास करके प्राणायाम है, योगासन है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करते रहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बट एक हैबिट बनाइए। आधा घंटा। मैं आपको अनेकों अनेक मेरे पेशेंट के उदाहरण देखता हूँ, जो एल्डरली 60 साल, 55 साल, 70 साल, 75 साल के, और एक चीज कॉमन फैक्टर उनमें दिखता है, तो सर मैं रोज चलता हूँ, सर मैं योगा करता हूँ, सर मैं रोज प्राणायाम करता हूँ, सर मैं बच्चों को मैं छोड़ने के लिए मैं रिक्शा नहीं वापरता हूँ। तो ये जो है ना, व्हीकल्स को हमेशा समाज के लिए, ये व्हीकल ये बून है, समय हमारा बचाता है, लेकिन उसको बैलेंस से हमें वापरना चाहिए। शरीर के लिए एक्सरसाइज भी होना चाहिए और साथ में हमारा समय भी बचना चाहिए। तो ये फ्रोजन शोल्डर जो है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो इसीलिए हमें शोल्डर्स की एक्सरसाइज भी करना हमारे लिए बहुत ये ज़रूरी हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप कोरोना के समय में एक बड़ा एक फैक्टर रहा है। लोग कभी भी कौन से भी का समय में सोते रहे हैं, कोई भी पोजीशन में सोते रहे हैं, और उसी की वजह से गर्दन के जो दर्द है वो भी बहुत आ चुके हैं। 2-2, 3-3 तकिया लेकर खटिए पर सो के हम, हमारा कंप्यूटर है, या तो घंटों तक हमारा मोबाइल पे हम देखते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि कितने घंटे हम मोबाइल के सामने रह चुके। और यह जब होता है तब गर्दन का कंटिन्यूस स्नायु के ऊपर जो लोड जो होता है, उसके वजह से गर्दन के दर्द जो है वो भी काफी मात्रा में जो समाज में जो है वो बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से कोरोना के समय ने, कोरोना ने हमें एक चीज सिखाया है कि क्या महत्व का है, क्या महत्व का नहीं है। कंप्यूटर, मोबाइल, ये जरूरी है, लेकिन उसको उतना ही समय तक रखिए जब तक उसकी जरूरत है। आपको शायद पता होगा, लेकिन जिन इस जगत के कंप्यूटर और मोबाइल के साथ, उसकी वपराश के साथ जो जुड़े जो महारथी लोग हैं, हाँ, जैसे कि फेसबुक के ओनर है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, और अलग अलग ट्विटर, अलग अलग कंपनियों के जो ओनर्स हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक नियम रखा है। ऑफिस के घंटों के बाद अपने घर में वो लोग व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, चैट, सब कुछ बंद कर देते हैं। ये जरूरी है। हम जितना इसके साथ रहते हैं, हम रियलिटी से दूर रहते हैं। एक चीज आपको बताता हूँ, कोरोना ने एक और चीज सिखाई, घर के लोगों के साथ हम कितना समय हम दे सकते हैं। हाँ? हमारे घर में जो व्यक्ति है, व्यक्तियों के बीच समय निकालना ये बहुत जरूरी है। हाँ, सवेरे उठकर जाना, हम मीरा रोड रहते हैं,
आप लोग शायद नज़दीक कहीं जैसे नेशनल पार्क है, हाँ कहीं गार्डन है, आप जाइए कभी फैमिली को लेकर सवेरे नेशनल पार्क में जाइए, कितना आनंद आता है। हाँ, पंछियों के बीच रहना, धूप को थोड़ा सा लेना, हाँ, पेड़ को उगते हुए फल को देखना। तो ये बहुत महत्व का है हमारे जीवन में, कि खास करके एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं कहता हूँ कि निसर्ग के साथ, नेचर के साथ रहना, ये शरीर के फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मानव समाज जितना निसर्ग के साथ दूर रहता जा रहा है, उतना ही वो ज्यादा कीमत देते जा रहे हैं। नैसर्गिक हमारी स्थिति है लोगों के बीच रहना, नैसर्गिक हमारी स्थिति है इमोशंस, भावनाओं को शेयर करना। ये हमारा नैसर्गिक स्थिति है कि किसी के लिए और कुछ करना और किसी से कुछ पाना। यह सब चीजों से, हाँ, कोरोना के समय में हमें मौका मिला कि हमारे घर वाले, हमारे लोगों, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ हम समय निकालें। और वो मौका को हमने गंवाया भी है। जितना हम कंप्यूटर के सामने हम रहे हैं, उतना हम जो है, हाँ, इस जो हमें जो मौका मिला लोगों के साथ रहने का, उससे हम कम हो चुके हैं। तो ये बोन हेल्थ इज एसेंशियल। कोरोना में हमने काफी कुछ गंवाया है। तो कृपया मैंने जो कहा, ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एल्डरली लोगों को खास करके विनती है, आपके घर में जो एल्डरली लोग हैं उनसे एक मेरी हम रिक्वेस्ट है कि जब भी बाथरूम वगैरह जाना हो, रात को जब भी उठना, तो उठकर पहले 2 मिनट समझ लीजिए अपने आप को, लाइट के बिगर चलिएगा नहीं। घर में कहीं पर भी पानी वगैरह गिराना नहीं है। ये सच्चाई है कि बाय मिस्टेक कहीं कोई पानी गिर गया, और पानी गिरने की वजह से पैर स्लिप हो जाता है और फिर बाद में गिर जाते हैं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि घर में टाइल्स निकालकर, मार्बल और ग्रेनाइट डालकर समाज ने अनेकों ऑर्थोपेडिक सर्जनों के बंगले बनाने में मदद की है। आप समझ सकते हैं कि जब हम घर में स्मूथ टाइल्स और ग्रेनाइट्स और मार्बल्स जब हम डालते हैं, और उस पे जब पानी गिर जाता है, हाँ, पानी, सूखा हुआ पानी, पीते हुए कुछ पानी गिर जाता है, और तब सडनली बेल बजता है, सडनली फोन आता है, सडनली हम एक रूम में उस रूम में जाते हैं, तब गिरकर एक्सीडेंट होना, ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इन हाउस जो एक्सीडेंट्स जो है, ये कोरोना के समय में बढ़ गया है। खास करके एल्डरली लोग जब आपके घर में रहते हो, तो ये ख्याल रखिए कि बाथरूम में रफ टाइल्स होना जरूरी है। बाथरूम में सोप का पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए। एल्डरली लोगों का बाथरूम जो होता है, वो बेड के, उनका जो रूम से उसके जहां तक नजदीक होना चाहिए, और हो सके तो किसी को उन्हें मदद के लिए उनके नजदीक रहना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ तक मेरा टॉक रखता हूँ। अभी अगर प्रश्न है तो वी कैन कीप ओपन फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न को अगर कुछ है, किसी को कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। इज इट ओके? वी कैन कीप ओपन फॉर द। Yeah. Yeah, Shweta, if anybody has any questions, they can ask, no? सर एक क्वेश्चन है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी के सप्लीमेंट कितने यूजफुल है? Yes, definitely it is useful. 100% it is useful. So once in a week, 6 weeks के लिए हम देते हैं। बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कि हाउ लॉन्ग, कब तक आप सप्लीमेंट लेते रहेंगे? समाज में अभी एक ऐसा भी वर्ग होता है, वो सप्लीमेंट लेते ही रहता है, लेते ही रहता है, एंड अल्टीमेटली दे कम विद द कंडीशन जो आज तक कभी भी देखा नहीं जाता था, वो है सप्लीमेंट पॉइजनिंग। Very high number of high level of vitamin, dangerous level, vitamin B12 very high level. So ये नेचुरल सोर्स से जब तक आप नहीं लोगे, so then you have to take, but then you have to measure, उसके लिए मेजर, ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आप ले सकते हैं। So that is very much essential. Yes, vitamin D3 शुरू में आप to build up the initial level of vitamin D3 आप ले सकते हैं, but later on you have to have a constant good exposure to sunlight. Natural resources से को हम कभी भी supplement से हम compensate नहीं कर सकते। Initially yes, शुरू के समय के लिए yes, but then we should make it a habit, lifestyle in such a way that we get what nature, what God has given us, natural supplements. We cannot compensate for that.
डॉक्टर एज यू से Please, इवनिंग का जो सनलाइट होता है उसमें विटामिन D3 नहीं होता, इज इट you करेक्ट? can take evening also. There is no problem. अगर नहीं पॉसिबल है, मॉर्निंग इज आइडियल, बट ओके दोपहर का लेने से आप इट इज एनर्जी सेपिंग सनलाइट. सो आइदर मॉर्निंग और इवनिंग यू टेक, देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू। एंड ऐसा इसका नहीं है, देर इज अनदर मिथ के आज बारिश, आज वातावरण बादल से भरा हुआ है तो जाके क्या, नहीं, विटामिन D3 इज सफिशियंट. हाँ, सूरज है, अगर तो प्रकाश है तो उसमें से अपने शरीर को विटामिन डी मिल सकता है, बट दैट यू हैव टू डायरेक्टली गेट एक्सपोज टू दैट. ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन, ये नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, बट क्या है कि हमारे यहाँ पे एवरी ईयर वी कंडक्ट दिस ब्लड टेस्ट फॉर द स्टाफ, एंड एवरी ईयर वी एनालाइज कि वी हैव सीन नॉर्मली 80 to 90% people are having this vitamin D levels less than 10. You know, it's on the वेरी deficiency. वेरी ट्रू. Our MD also has talked to people in together कि भाई you people have to get exposed to, जैसे आपने कहा, rightly कहा था कि people, but there is some kind of reluctance or people may be getting a feeling कि भाई ये मैं क्यों करूँ. So how do we influence people, or how to make this, you know, people should definitely, you know, go out and get some kind of sunlight, if not in during working days or even during working days or maybe in weekends also, but नहीं करते हैं लोग. I don't know what is the reason. There is a one saying in Gujarati, I don't know, वाळेला ना वळे तो हारेला वळे. मनाने से नहीं मानते हैं तो हार कर मानते हैं. Right, right, right. जब फ्रैक्चर और जब एक्सीडेंट, जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है, फिर हार कर हमें विटामिन D3 लेना पड़ता है. मैं जब फर्स्ट MBBS सेकेंड MBBS में था, तभी यूनिवर्सली हर डॉक्टर के लाइफ में ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग PSM करके एक हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. वह सब्जेक्ट सिर्फ धमाल करने के लिए हुआ करता था. तभी भी हम ध्यान देके कोई भी डॉक्टर का पूछिए, बोले PSM में आप क्या करते थे, तो हंस लेगा. Okay. लेकिन आज आफ्टर 35 years 37 years of my practice, I feel preventive and social medicine is the most important subject. बीमारियों को कैसे हम प्रिवेंट करें. आप अगर विटामिन D3 अगर आप सफिशिएंटली सनलाइट के द्वारा लेंगे, आप कैल्शियम सफिशिएंटली सनलाइट के लेंगे, आप 1-1.5 लाख रुपए का, आज एक फ्रैक्चर हो जाता है, मेजर फ्रैक्चर हो जाता है, मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा. ऑफिस से आपका कम से कम 3 महीने का आपका वर्किंग आवर्स आपके चले जाते हैं, प्लस रिहेबिलिटेशन. एंड देर इज नो 100% गारंटी कि आप फुल्ली 100% वर्क में आप फिट हो जाएंगे. कितनी बड़ी कीमत हमें देनी पड़ती है. सो दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड विथ इंटेलिजेंस एंड इम्बाइब इन द लाइफ कि ये छोटा सा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, ताकि हमको लेटर ईयर्स में हमें काम आ जाए. लेकिन वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर बोन्स, इन आवर हेल्थ, विच विल गिव अस मच मोर रिटर्न. एंड बॉडी में इतना अच्छा कैपेसिटी है, मदर नेचर ने इतना सुंदर बॉडी बनाया है कि छोटा सा ध्यान दो, बॉडी गिव्स मच मच इन एबंडेंस. ये नेचर का एक गुणधर्म है. आप धरती माता को थोड़ा सा बोइए, आपको इतना देती है कि आप खुद खा नहीं पाओगे. ये नेचर का गुणधर्म है. थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, शरीर का भी नेचर का ही हिस्सा है. एक थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपको शरीर कितनी सारी चीजें रिटर्न्स में दे सकता है. तो ये हमें बुद्धि से हमें ये समझना चाहिए. विथ इंटेलिजेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड follow. Thanks, doctor. I hope that everybody at PML has heard what doctor has said. I hope that you get the motivation to, you know, do this activity, you know. Yes. Doctor, I have one question. Yes. These days it is commonly seen that the ligament problem in the younger age is also seen very commonly. So how do we protect this? Like, how do we take care that we do not face such problems? Yeah. See, हम जब छोटे थे ना, हमारे वैदिक संस्कृति में दंड बैठक कराते थे. यू नो, नीचे शिक्षा अगर हुई स्कूल में तो उठ बैठक कराते हैं. यू नो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, yes. उठना बैठना. That type of exercises, squatting and getting up, नीचे बैठकर काम करना, नीचे बैठकर काम करके खड़ा. देखो, पहले के जमाने में हमारे किचन्स नीचे हुआ करते थे, चूल्हा नीचे हुआ करता था. स्त्रियां जो होती है हमारी, वो जमीन पर बैठकर बाद में खड़े होती है, नीचे बैठती है, नीचे खड़ो. ये गेटिंग स्क्वेटिंग एंड गेटिंग अप in a normal standing position, that is a time when ligaments get strengthened. Unfortunately,
जमीन पर बैठना अब चला ही गया, हाँ, चेयर पर बैठना आ गया, स्कूल में जाओ चेयर पर बैठते हैं, घर पे जाओ चेयर पर बैठते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द ये रेगुलर्स नीचे बैठकर लाइक स्टेयरकेस चढ़ना, स्टेयरकेस उतरना, हाँ, नीचे खो खो हम खेलते थे, खो खो में खेलते समय नीचे बैठ के सडनली खड़ा होना और फिर दौड़ना, हाँ, गोटी हम खेलते थे, नीचे बैठ के हम खेला करते थे। ऐसे हमारी इतनी सारी हमारी जो गेम्स होती हैं जिसमें सारे हमारे जो लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग हुआ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अभी के जो गेम्स है, आई ऑलवेज, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं फुटबॉल खेलकर, तो सबसे पहला मैं बोलता हूँ फुटबॉल इज अ वेरी गुड गेम। तो बच्चा जोर से हंस लेता है, वाओ, हाँ, डॉक्टर मेरे गेम को अप्रिशिएट करता है। फिर मैं उसको कहता हूँ कि फुटबॉल इज वेरी गुड गेम बिकॉज इट प्रोवाइड्स मी लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज हमने हमारे जो लिगामेंट्स को ट्रेन नहीं किए हैं। योगासना जब हम करते हैं, अलग अलग आसना, हाँ, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, अर्ध मत्स्येंद्रियासन है, या तो फिर हम त्रिकोणासन है, हर एक आसनों को अगर आप देखो, मैंने खुद ने ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से योगा का स्टडी किया है, एंड एवरी आसना के पीछे मैं एज ए ऑब्जर्वर ऑफ एन ऑर्थोपेडिक्स मैं देखता हूँ कि इसमें कौन से लिगामेंट्स, इसमें कौन से जॉइंट्स, इसमें कौन से बोन्स में इसमें मदद मिलेगी। सो दैट we have to strengthen our bones and our ligaments by proper stretching. कुछ ना हो तो दंड बैठक है, उठ बैठक है, चलना है, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग करना है। सिर्फ अगर आप ऑफिस में 3 या 4 स्टेयरकेस क्लाइंब कर लो रोज, एक एज ए हैबिट, लिफ्ट ना वापरो, that will strengthen your knee ligaments and ankle ligaments to large extent. अनफॉर्चुनेटली हम वो करते नहीं है, और जरा सा लग जाता है, बाइक थोड़ा सा गिर जाता है, लिगामेंट्स हमारे टूट जाता था। और यू आर एब्सोल्युटली राइट, थोड़े साल पहले इतनी लिगामेंट इंजरीज हम नहीं देखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पूरा एक जनरेशन ऐसा आ गया है जो चाइल्डहुड से एक्टिविटी और फिजिकल स्पोर्ट्स में उतना नहीं रहा है, एंड देन लिटिल इंजरी एंड देन इट गिव्स अवे। आज भी मेरे पास जब गाँव से आते हैं कई बार पेशेंट्स आते हैं, दे आज भी दंड बैठक करते हैं, हाँ, उठ बैठक करते हैं, और उनके लिगामेंट्स में, उनके जॉइंट के सरफेस में उतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। दूरबीन डाल के मैं जब देखता हूँ तभी नहीं होते उतने प्रॉब्लम्स, क्योंकि दैट रेगुलर एक्सरसाइज इज नॉट देयर इन अवर यूथ। दैट इज अ प्रॉब्लम वी आर सीइंग इन यंगर एज ग्रुप। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जरा सा लग जाता है, एंकल ट्विस्ट होता है, लिगामेंट टेयर, जरा सा घुटना ट्विस्ट हो जाता है, लिगामेंट टेयर। दैट इज बिकॉज वी हैव नॉट गिवन देम इनफ strengthening opportunity in our life, especially since childhood. Okay, thank you. So lifestyle is changing, so these problems are increasing. In Pardon? childhood, teacher used to punish us कि भाई उठक बैठक Yes. करो, फिर वो टीचर Yes. पनिश करेगा तो उस पर तो केस फाइल हो जाएगा। Many, all our ये जो कान पकड़ के जो उठ बैठ कराते थे, they have all है now अभी साइंटिफिक जो माइक्रो सूक्ष्म योगा जो व्यायाम है, उसमें सारी ये जो पनिशमेंट है, इट हैज अ साइंटिफिक मीनिंग एंड पर्पस फॉर दैट। ये कान पकड़ के उठ बैठ कराते थे, दैट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, वो जो चंचलपना जो है उससे कम होता है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। So unfortunately, we are all heading towards the non-Indian style of training, teaching, punishment. And now, तो you can't punish anybody. Yeah, करवा चाहो तो। केस फाइल हो जाएगा उस पे, Yeah. पनिश करके। Yeah. Yes, Shweta, anybody else want to ask any question? Yes, if anybody कुछ भी सवाल पूछना है पूछ लीजिए। बोन डेंसिटी का क्या रोल है इसमें? बोन Yes, डेंसिटी। definitely. Yeah, thank you, Mr. Shetty. Bone density is very important because उससे हमारे बोन में कितना फ्रैक्चर होने का चांसेस है, कितना उसमें कैल्शियम कम है, ये दिखता है। लेकिन एक साथ में एक और भी है कि इट इज समटाइम्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बोन डेंसिटी के साथ एक डर, और डर के साथ बाद में इकोनॉमिक्स आ जाता है। So that is not good. Huh? We regularly exercise, we regularly take milk, and we regularly take sunlight. Then the economics connected to bone density doesn't come in our life. Otherwise, there is an element of economics which can play with us in bone density.
Yes, So anybody else? It's 5 p.m. Yeah, we can end the session now. Yeah. Yeah, sure. Yeah. So we thank you, Dr. Rajesh, Urmila Madam, and Bhakti Dr. Vedanta for managing time out of your busy schedule. This session was indeed very informative to us, and we will try to follow as much as possible all the instructions that has been given to us. Thank you so much. Thank you. Thank you all very much. Thank you, doctor. Thank you. Bye. 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 Thank you. Thank you.